The art form that we will talk about is called Babo Pithoro. Babo Pithoro is the chief god of the Rathva, and Rathvas is the community who worship the deity. Right? तो ये पूरा perspective, जिस perspective से हम देखें जाएंगे, it is not going to be an aesthetical perspective or an art perspective. We are going to look at this particular art form from a socio-cultural perspective. इसका society के Rathva society के साथ पिथोरो का relation क्या है, उनके culture के साथ उनका relation क्या है, ठीक है? So we are going to look at from a perspective, different style of perspective. Okay, indigenous art form को देखने का एक नया नजरिया. But before that, let us look at थोड़ा सा हम राठवास के बारे में जानना जरूरी है. So let us look at some information, some basic information about the Rathva people. So this is the population. The language that they speak is Rathvi, very distinctive style of language. It is very similar to Gujarati when it sounds, but it has various impact of various other languages as well. राठवा ज्यादातर कहाँ रहते हैं तो छोटा उदयपुर एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात. ये छोटा उदयपुर जो रीजन है, इट इज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ 3 डिफरेंट स्टेट्स. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात तीनों इसके आसपास पड़ते हैं. इट्स प्रिडोमिनेंटली इंडिजिनस बेल्ट, ट्राइबल बेल्ट अगर आपको कहना है उसे, तो बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज यहाँ पे पाए जाते हैं. पंचमहल डिस्ट्रिक्ट भी एक पूरा पहाड़ी इलाका है, और छोटा उदयपुर भी एक पहाड़ी इलाका है. सो व्हाट इज द बेसिक मेन ऑक्यूपेशन राठवास का क्या है, तो एग्रीकल्चर, स्मॉल टू मीडियम स्केल एग्रीकल्चर. तो राठवास को राठवास क्यों कहते हैं? अगेन वी लुक्ड इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज अबाउट नेम्स, राइट? तो उसमें से ये एक और स्टोरी हम देखते हैं. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि राठवास भी भील कम्युनिटी के ही पार्ट है. दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द लार्जर भील कम्युनिटी, and some years ago or some centuries ago a certain group of Bhil members or Bhil community members might have migrated into this particular region of Gujarat, which back then was called राठ, और राठ विस्तार के नाम से इस एरिया को, इस रीजन को कहा जाता था. और फिर उसके निवासियों को राठवा कहने लगे. राठवा, राठ विस्तार में रहने वाले लोग, इसलिए राठवा. बेसिकली राठ और या राठ विस्तार का अर्थ क्या होता है, तो बेसिकली इट मीन्स इन राठवी लैंग्वेज अ जंगल और अ हिली रीजन. तो जंगली पहाड़ी इलाका को राठ कहा जाता था, तो राठ जगह पे रहने वाले लोगों को राठवा. इस तरीके से राठवास derive their name. Okay, so moving on. So let us look at some interesting aspects of their religion, very unique form of religion. So Rathvas originally follow a combination of worshipping nature, animism in with relation to shamanism as conduits. Basically, nature worshippers है, animal kingdom में nature को worship करते हैं, but through shamans. Shamans play a very important role in the Rathva society. They are the means of communication between the celestial and the living world, and everything. Just not the religious aspects. They are not just priests. They perform various different roles. They are veterinary doctors, they are human doctors, वो agriculture के expertise रखते हैं, music के बारे में रखते हैं, about the oral heritage and oral history of the community. बहुत सारी stories वगैरह भी shamans जानते हैं. They are play a very different kind of role, बहुत ही unique and major role play करते हैं society में. Every village has their own shaman. उनको हर गांव का अलग अलग होता है, depends on the size of the village. वहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, right? So the Rathva pantheon of their religion and their gods is very very humongous. बहुत सारे भगवान और देवियां हैं उनके पूरे इसमें. They have different gods, different goddesses, but each of them are worshipped for a specific need. There might be a god for family, god for a village, god for children, god for women, god for animals, god for better health, god for rain, god for illness and pure securing security from illness, farming and so on. और सब गॉड्स का कुछ ना कुछ यूनिक रोल भी होता है कि दे परफॉर्म अ सर्टेन रोल, और उस रोल के लिए उन्हें पूजा जाता है. ठीक है. जैसे सिमिलरली आप जो ये इमेज देख रहे हैं, इस डीटी का नाम है नाक्ति भूते. Nakti Bhutin's primary role or primary duty is to act as a protector of villages of the Rathva people. वो किस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं, क्या टाइप का प्रोटेक्शन करते हैं, तो इट्स अ वेरी यूनिक एस्पेक्ट. जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स आर कमिंग टुवर्ड्स द राठवा विलेज, दैट इज समथिंग दैट नाक्ति भूतेन प्रिवेंट्स.
कुछ भी नेगेटिविटी वो विलेज के आसपास, राठवा लोगों के आसपास पहुंचने नहीं देते. सो very similar to what the concept of dream catcher that we know of. Dream catcher का आप concept जानते ही होंगे. If you do not, थोड़ा सा dream catcher क्या है पता कीजिए. Nakti Bhutin is something very similar. He is a formless deity portrayed as a person riding on a horse. तो इसमें horse और rider का क्या significance है हम थोड़ा आगे देखेंगे कि deity is it a human, is the deity human or is the deity horse, थोड़ा आगे हम देखेंगे. So that is basically how he is portrayed, always in white on a darker background. So contrasting उसको इस तरीके से portray किया जाता है. It's a very unique form of a deity, formless deity है. If you talk to the shamans and the priests and everybody who have the knowledge of all the deities, they will tell you he does not have form. Sometimes he'll be in the form of air, sometimes he'll be form of a tree, sometimes he'll be in the form of a different entity altogether, right? So in recent times, religious changes have been seen in the Rathva society. We've seen a lot of modernization arrive in the Chhota Udepur region, where predominantly the Rathvas stay, and a lot of different communities and communal sects are coming up in this particular region. But the main fact that we need to understand it, this is not forced religious conversion. They convert for specific reasons because there are several different better opportunities provided by these different sects. Schools unke set up hote where their children can get free education, better working opportunities. They believe in this particular sects. तो इन तरफ से होता है. तो what is the basic problem in this particular section? Not a problem, just to clarify that okay, there is changing happening. They still have the traditional religion, they still follow it, lot of people are still following it, but there are certain section of the Rathva society that have been attracted and migrated towards changing their religion. So एक ही village में आपको अभी बहुत सारे अलग अलग groups दिखेंगे, होंगे सब राठवा ही, but their religious and theological perspectives will differ based on what their beliefs are, right? Okay. So, one part or one element of their religious religion is the concept of Devasthals. Now, Devasthals is a very unique concept and a unique practice. ये basically क्या होता है? You can understand them as the temple. Best synonymous example or meaning would be for you to understand would be a temple. जहाँ पे वो जाके अपने पूजते हैं. बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है. देवस्थल को देवस्थल क्यों कहते हैं? थोड़ा वो समझ लेते हैं. देव एंड स्थल, जहाँ पे द लोकेशन ऑफ गॉड्स और द प्लेस ऑफ गॉड्स और द अबोर्ड ऑफ गॉड्स और द रेसिडेंस ऑफ गॉड्स, इस तरीके से उसका कुछ अर्थ आप समझ सकते हैं. तो राठवास के गांवों में मंदिर नहीं होते हैं. उनके गांव के बाहर एक आइडेंटिफाई करके एक जगह आइडेंटिफाई की जाती है. स्पेशली इट इज अराउंड अ वेरी स्पेशल ऑस्पिशियस ट्री. महुड़ा का ट्री होगा, या तो खेर का ट्री होगा, या तो खाकरा का ट्री होगा. सर्टेन ट्रीज विच प्रोवाइड अ lot of different products और is very useful for the people. तो ऐसे ट्रीज, बहुत सारे ऐसे ट्रीज है जैसे खाकरा एंड महुड़ा का इम्पोर्टेंस अमंग द राठवा एंड द भिल कम्युनिटी इज वेरी वेरी वेल नोन. तो ये ऐसे कुछ ट्रीज के पास एक लोकेशन, गांव के बाहर एक लोकेशन डिसाइड करता है पूरा गांव, और वहां पे वो जाके अपने देवस्थल को क्रिएट करते हैं और वहां पे जाके पूजा पाठ होती है. इट माइट बी देवस्थल आर यूज्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मैरिजेस, डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग वर्शिप के टाइम्स पे वहाँ पे वर्शिप होता है. तो बेसिकली दे आर अ कॉमन प्लेस ऑफ वर्शिप which are basically called devastal. The gods and goddesses and ancestors are worshipped over here. Ancestral worship भी यहाँ पे राठवा community में बहुत ही predominant है. You just do not worship the gods and goddesses, your ancestors are just as important, तो उनमें भी पूजा जाता है. What are the different kinds of offerings जहाँ पे हम यहाँ पे उनके देवस्थल में देख सकते हैं. जो हम मंदिर में जाते हैं तो हम फूल चढ़ाते, नारियल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, कुछ जो करते हैं ना, तो यहाँ पे राठवा कुछ अलग तरीके से करते हैं. So they will use a lot of terracotta items, wooden horses, terracotta elephants, different and artifacts like you are seeing in this particular image. Terracotta lamps होते हैं, food bowls and pots and ये सब होते हैं, which are very commonly made in terracotta. ऐसे artifacts आपको किसी भी छोटा उदयपुर से पंचमहल जहाँ भी आप जाओ, तो जहाँ भी potters मिलेंगे आपको, ऐसे artifacts आपको easily available मिलेंगे, right? So this photo that you are seeing is from the Vacha Museum in Adivasi Academy. Rathvas ke Devsal are very what you can say, they are very special place in their hearts of the Rathva people. So photography was never allowed. मुझे chance नहीं मिला कि मैं एक original देवस्थल को
photograph कर पाऊँ, because I did not receive the consent of the people. But I visited a lot of देवस्थल, original देवस्थल जैसे traditional देवस्थल होते हैं वो देखे हैं, but due to lack of consent I could not photograph it. So this is the best rendition or the best recreation of how देवस्थल basically looks like. So just to give you an understanding, this is in a museum, वाचा म्यूजियम, जो राठवा के कम्युनिटी मेंबर्स ही चलाते हैं. तो ये बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं. So this is again just a view of showcasing. I was referring to a museum with no walls का एक concept yesterday, right? In the types of museum जब हम बात की थी, तो this is at the Vacha Museum. So you can see there's wall on just one side, while there's an open courtyard in the center of the museum, which is where the Devastal is currently seen, right? Okay. So in relation to the religion, what are the different festivals that they celebrate? So Holi is one of the most important festivals of the Rathva people, and Divaso, another important festival that they celebrate. Diwali and Divaso is very similar to Diwali, right? So Dasera is another festival. Dev Diwali is another important festival, and Akarti or Akshay Tritiya. So very interesting fact about the Rathva and many indigenous communities that we have in the country. So the indigenous population very commonly just take one day of the month as a holiday. पूरे महीने में सिर्फ एक दिन वो छुट्टी लेते हैं और पूरा बाकी के महीने के दिन वो काम करते हैं. The concept of Sundays and weekend get outs और वो सब जो हम करते हैं, city folk करते हैं, बाकी communities करते हैं, ऐसा concept उनमें नहीं होता है. So very unique aspect. So let us look at some concepts of melas. I hope you all understand मेला क्या होता है. Fairs होता है, so community gathering, large gathering जहाँ पे अलग अलग concepts पे अलग अलग thematics पे मेले होते हैं. So the concepts of melas is something which is very integral part of the Rathva society. They have several different melas on different concepts, or of which Tela Mata Mela in Pavi Jetpur region, which is very close to the Tejgarh town, वो बहुत ही फेमस है. इट्स अ रिलीजियस मेला. फिर घेर मेला विच हैपन्स इन कवाट. ये घेर मेला क्या है, थोड़ा इस पे गूगल कीजिए. कवाट रीजन में ये होता है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेयर्स विच हैपन्स इन एंड अराउंड दी फेस्ट अराउंड दी होली पीरियड के आसपास होता है. होली का जो त्योहार जब शुरू होता है तो इट्स 7-8 days तक कंटिन्यूसली फ्रॉम विलेज टू विलेज मेले होते हैं. एक जगह से पावी जेतपुर जगह से शुरू होता है, then it will move on to the next village, then next village, and it will go all up the way up to Kawan. तेजगढ़ में भी होता है, जोज में होता है, छोटा उदयपुर टाउन में होता है, and then Kawat is the last region after which MP के borders बहुत पास आ जाते हैं. The घेर मेला in Kawat is something which is very unique, and if possible just थोड़ा सा उसे गूगल कीजिए. In previously what I've been told, घेर मेला में बहुत एक unique activity हुआ करती थी which does not happen anymore, but I still like to share that. घेर मेला एक ऐसा इवेंट हुआ करता था जहाँ पे शादियां अरेंज होती थी. स्वयंवर जैसा सिस्टम वहां पे आप कुछ समझ सकते हैं. स्वयंवर नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी इट इज द क्लोजेस्ट टू द कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू शेयर विथ यू. What used to happen is the young boys who are ready to get married will prepare or make or craft a flute, a bamboo flute. Short flute होती है, 6 to 8 inches की एक flute बनाएंगे बैम्बू से, जिसका नाम है पेही. छोटी फ्लूट होती है, पेही बना के वो मेले में आएंगे. वाल जो लड़कियां जो शादी के लिए तैयार है वो एम्ब्रॉयडर्ड वेरी डिजाइनर अम्ब्रेलाज लेके यहाँ पे मेले में आएगी. और जो सबसे बेस्ट फ्लूट प्लेयर है और जो सबसे ब्यूटीफुल जिसने अम्ब्रेला बनाई है, दे कैन सिलेक्ट विच एवर ब्राइड एंड ग्रूम दे वांट. सो यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंस किस चीज को होता है कि लड़कियां लड़कियों को चूज करती है. दे हैव द राइट टू सिलेक्ट देयर मैरिज पार्टनर्स. और उसके बाद सिलेक्शन हो जाने के बाद दे डांस अराउंड इन उनके ट्रेडिशनल टीमली डांस फॉर्म में वो साथ में एक as a couple they will dance, which will signify to the entire population or the people present over there that they have finally selected their marriage partner or life partner. उसके बाद पूरा families will get involved. families फिर आके साथ में बैठ के बात करेंगी, they'll arrange कि कब शादी करनी है और बाकी का सारा प्रोसेस होता है. It does not happen anymore. कुछ साल पहले तक ये ऐसा हुआ करता था. This is what I've told. ये मैंने भी नहीं देखा है. This is something which I have been told by the members of the community. A very interesting affair. इसके कुछ images आपको अगर if you are lucky you might be able to see it on the if you google the entire concept. घेर मेला को अगर आप गूगल करोगे तो आपको ज्यादा उस पे देखने मिलेंगे. Then there are several different melas which happen in and around the region of Chhota Udepur, Dungarvat में Jhoj, Raisingpur, Chhota Udepur town. Chhota Udepur is a larger town. Then Amrol, all around the
ये रीज ऑफ द टाइमलाइन ऑफ होली, होली के आसपास ये सारे अलग अलग मेले होते हैं। हर साल जो मेला, जो होली के पीरियड शुरू होता है, तो हर साल गांव बदलते हैं, और कौन सा गांव में सबसे पहला मेला होने वाला है, सबसे लास्ट मेला कहाँ होने वाला है, राठवाज आर नोन, दे नो अबाउट इट बिफोर, nobody has to go out and अनाउंस दिस इंफॉर्मेशन, और पेपर में, न्यूज़पेपर में डालने की जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी नो कि इस कौन से गांव में शुरुआत होने वाली है। दे आर वेरी यूनिक टू एक्सपीरियंस लाइक दैट। Then couple of melas called the Tur Mela and the Kaleshwari Mela have been started by Bhasha Research and Publication Center in collaboration with their own sister organization, the Adivasi Academy, Tejgarh. Tour Mela, which occurs it used to be an annual affair, but not so anymore. वो depend करता है वो कब करना चाहते हैं, but it is held at the Adivasi Academy in Tejgarh. Tour Mela is a mela for tribal music or indigenous music. People, musicians of the countries arrive from different locations of the country on invitation. वहाँ पे आके वो अपने traditional music को perform करते हैं, and then you get a lot of visitors to observe and experience the tribal music का diversity. कलेश्वरी मेला के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा की है। कलेश्वरी मेला was started by भाषा Research and Publication Center back in 1998 to from the point of view that they wanted the indigenous population of that part of the region of Gujarat to have a direct interaction with the administrators of the state, like the police officers and the IAS officers or the people who are administering this particular population. तो उनके बीच में का डर हटाने के लिए and to start a conversation, especially between the police. पुलिस से डरने के बजाय पुलिस के साथ उनका इंटरेक्शन करे, इसलिए कलेश्वरी मेला एक शुरुआत किया गया था, जिसमेमें ट्राइबल और इंडिजिनस डांस एंड म्यूजिक कितना डाइवर्स है, कितना यूनिक है, ये दिखाने के माध्यम से दे वर इनवाइटेड टू द ASI साइट ऑफ कलेश्वरी, जहाँ पे ये परफॉर्मेंस शुरू हुआ था। एंड नाउ इट हैज बिकम एन एनुअल अफेयर वेयर यू डू नॉट नीड टू इनवाइट एनीबडी। सब लोग को पता है महाशिवरात्रि का दिन पे कलेश्वरी मेला होगा। लोग दूर दूर से ऑल ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात एंड दी बहुत सारे अलग अलग स्टेट से भी लोग यहाँ पे आते हैं। दे परफॉर्म their ट्रेडिशनल डांसेस, perform their traditional music, and we can experience the traditional, the diversity of how unique the indigenous dance and music is, and a lot of different activities are also done during the Kaleshwari Mela। पूरा एक day long affair होता है, सब लोग पूरा दिन इधर आके enjoy करते हैं। Nowadays you get as many as 10 to 15,000 people visiting in one particular day। Then another interesting concept of the Rathva society is called Haat. Now Haat is basically a weekly market. पूरा एक weekly market होता है, और it changes from location to location. The most famous one is on the day of Sunday, which is held in the Chhota Udepur town. So you can come here, buy and sell everything. Almost everything is अवेलेबल फॉर योर। स्पाइसेस चाहिए आपको, एनिमल्स खरीदने, आपको गाय खरीदनी है, आपको बफेलो खरीदनी है, आपको शीप खरीदनी है, आपको गोट खरीदनी है, यू वांट टू बाय बो एंड एरो, यू वांट टू बाय खाटला, एक खटिया खरीदना है, बास्केट्स खरीदने हैं, केन के बास्केट, टेराकोटा के आर्टिफैक्ट, जो भी आपको खरीदना है राठवा सोसाइटी के अंदर, सारा का सारा इज अवेलेबल हियर। एंड स्टिल टिल डेट वी स्टिल हैव वाटर सिस्टम इन सेल्फ प्रैक्टिस। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि किसी एक राठवा को के पास ही हैज सम सरप्लस ऑफ फ्रॉम हिज एग्रीकल्चर, उसके पास 30-40 kgs ऑफ राइस है एंड ही वांट्स टू बाय अ शीप, तो दे कैन एक्सचेंज। किसी को शीप बेचनी है और किसी को उसको राइस चाहिए, तो दे माइट एक्सचेंज। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तो जस्ट टू शो के इसके बार्टर अभी भी चल रहा है वहाँ पे, एंड इट इज अ वेरी यूनिक थिंग। उसमें भी बार्गेनिंग वगैरह, बार्टर में भी बार्गेनिंग वगैरह की जाती है, बहुत ही यूनिक अफेयर है, वो एक्सपीरियंस करने जैसा है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, हार्ट इज जस्ट नॉट अ मार्केट जहाँ पे आप आके सब चीजें खरीदो और बेचो, ऐसा नहीं। उसमें इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, जहाँ पे दो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड पीपल ऑफ द राठवा सोसाइटी कम हियर, they enter into conversation, मिलते हैं, जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, and they get to get all the information about the राठवा सोसाइटी। कहाँ शादी होने वाली है, कहाँ मेले होने वाले हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पिथोरा की पूजा होने वाली है, कहाँ पिथोरा पेंट होने वाला है, सारी जो भी राठवा सोसाइटी में चीजें चल रही है, सब की सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे हार्ट में मिल जाती है। Right, so then we move on to the main subject that we are going to learn about, so Babo Pithoro of the Rathvas. But before that,
Let us do a little exercise. Look at this particular painting that is there in front of you. It is done inside a wall of a Rathva home. And try and guess के what is the painting about. क्या दिख रहा है आपको? You're looking at this particular Rathva art form for the first time, and this is what our first perceptions are. कि कुछ celebration हो रहा है. There's some kind of a procession. Maybe there is a war or something happening. Maybe it's a market that people are buying and selling something. There's a fair, probably a fair, lot of different activities are seeing. तो हाँ fair हो सकता है, एक रॉयल प्रोसेशन हो सकता है, बहुत सारे घोड़े और हाथियां दिख रहे हैं, तो हाँ एक प्रोसेशन, ये तो रॉयल प्रोसेशन लग रहा है। फेस्टिवल भी हो सकता है, या तो किसी भगवान को प्रे कर रहे हैं और वही सब रिचुअल्स के फॉर्म में हम देख सकते हैं। इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। दिस इज द एंटायर वर्ल्ड व्यू ऑफ द राठवास बीइंग प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू। बाबा पिथोरा का पूरा एपिक आपके सामने है। इट्स द एंटायर स्टोरी ऑफ द लाइफ एंड द एंटायर स्टोरी ऑफ द importance of their chief god Baba Pithoro in front of you. So if you want to learn absolutely at least comprehensive understanding, अगर आपको राठवास और राठवास की थियोलॉजी के बारे में करना है, तो every answer is right there in front of you. So उसकी stories क्या क्या है, we'll look into that little bit. So all the answers are wrong. This is all about बाबा पिथोरो। बाबा पिथोरो क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो the first we figure out that it is the epic of Baba Pithoro. So there are several different stories associated within just one little painting. There are 3 paintings. So let me first explain exactly कि पिथोरा कैसा होता है। So राठवा के घर किस तरीके से होते हैं, पहले वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। So they have a larger land. अभी वो लैंड को आगे का पार्ट एक होता है, वो उनका वरांडा होता है, जहाँ पे वो अपना छोटा मोटा काम करेंगे। एक लिविंग स्पेस जैसा होगा टू वेलकम द गेस्ट। एक वरांडा जैसा होगा जहाँ पे लोग आके बैठ सकेंगे, वहाँ पे पानी पीने की जगह होगी, हाथ पैर धोने की जगह होगी। एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्लेस, जैसे हमारे गांव में, सबके गांव में होता है वैसा। their house and their construction, the architecture of their house is rectangular. So imagine a rectangular, और rectangular के बीच में entrance है। as soon as you enter into that rectangle, तो फिर से एक लिविंग स्पेस जैसा होता है, जिसे ओसरी कहा जाता है। OSARI। ओसरी इज अगेन लाइक अ लिविंग स्पेस, लिविंग रूम जैसा एक रीजन होता है। ओसरी के 3 दीवारों पे पिथोरा का पेंटिंग होता है, पिथोरा का म्यूरल बनता है। The first wall, or the larger wall, the kind of wall that you are seeing, and then on the left hand side wall and the right hand side wall। ठीक है, तो वो पूरा घर का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। There's a kitchen on the right usually, and there's a bedroom on the left. Imagine left right change हो सकता है किचन का लोकेशन। Then there's a living space in the center, और पीछे के बाद घर के पीछे there's always नहाने धोने की स्पेस पीछे होगी। एंड द एंटायर स्पेस बिहाइंड द हाउस विड बी देयर ओन प्राइवेट फार्म, छोटी सी फार्म जो अपने घर के लिए वो करेंगे। घर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सारा का सारा, जो भी मतलब जितनी जगह है उतना वो फार्मिंग करेंगे। सो इट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर दैट द राठवास है। और ओसरी में ये 3 दीवारों पे होता है। राठवास का घर का स्ट्रक्चर इज यूनिक बिकॉज वो अपने एनिमल्स का शेड भी अपने घर के कंस्ट्रक्शन में ही रखते हैं। घर के बाहर एनिमल्स को रखने की अलग शेड नहीं बनाई जाती। काउ शेड और जो शीप एंड गोट का शेड है, वो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही रखा जाता है। तो ओसरी का एक पार्ट जो होगा, एक एंड ऑफ द ओसरी आइदर ऑन द लेफ्ट और आइदर ऑन द राइट, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे वांट टू स्टेशन देम, वहां पे घर उनका बनाया जाएगा जहाँ पे एनिमल्स को रखना है। और उसी स्पेस में ही राठवा का अपना ये ट्रेडिशनल फॉर्म भी बनता है। तो ये 3 पार्ट में होता है, जिसका सिर्फ आप एक सेंट्रल पार्ट देख रहे हो, विच इज टोटली डेडिकेटेड टू द एंटायर स्टोरी ऑफ बाबा पिथोरो। तो सबसे पहले लेट अस गो बैक टू द बिगिनिंग कि बाबा पिथोरो कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो द स्टोरी गोज कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज द चीफ गॉड ऑफ द एंटायर राठवा पीपल हु वाज कॉल्ड बाबा इंद। Okay, Baba Ind is basically our Lord Indra as well. You can identify him as well. So in the Rathvas, he is also called Meghraj, जो पूरे धरती और heaven को rule करते, is to rule heaven and earth totally. And he was chief among all the gods. We've looked into little bit of how many gods there are. So उसके और gods भी हम देखेंगे। और बाबा इंद की 7 बहनें थी। रानी काजल, रानी माखल, रानी धरती, रानी होरा, रानी कालू एंड रानी काली कोयल। तो उनके ऐसे कुछ 7 बहनें थी। तो बाबा इंद को किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, इज वेरी सिमिलर टू हाउ बाबो पिथोरो इज पोर्ट्रेड। नाउ लिटिल बिट
एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम बाबा इंद को बाबा इंद कह रहे हैं, बट पिथोरो को बाबो पिथोरो कह रहे हैं. बाबो इज अ चाइल्ड while बाबा इज एन एल्डर. तो पिथोरो को हमेशा राठवा सोसाइटी बच्चे का दर्जा देती है, सो इज ऑलवेज मोस्टली रिफर्ड टू एज बाबो पिथोरो, बट एज एन एल्डर इफ इज लुकिंग एट एल्डर तो बाबा पिथोरो बन जाते हैं. नाम भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे बाबो पिथोरो और बाबा पिथोरा दो अलग नाम से जाने जाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन कौन सी उनको किस तरीके से देखा जा रहा है. तो पोर्ट्रेयल इज बेसिकली लाइक दिस. ही यूजुअली हैज अ पैरट, द राइडर हैज अ पैरट. हु इज द एंटायर डीटी, कौन है एग्जैक्टली वो थोड़ा हम बाद में देखेंगे. तो सबसे छोटी बहन जो थी बाबा इंद की, वो सबसे सुंदर थी. शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल. हर नेम वॉज रानी काली कोयल और रानी कोयल. कैन कॉल हर आइदर वे. So every day she had a few favorite pets of hers, a very favorite cow and a very favorite sheep. तो वो अपने एनिमल्स को रोज खुद ही चराने लेकर जाती थी. कहाँ चराने लेकर जाती थी? तो राजा भोज के मैंगो फार्म्स में. वहाँ पे सबसे अच्छा ग्रास एंड फॉडर एंड वाटर वाज बेस्ट अवेलेबल ओवर देयर. सो शी एवरी डे शी यूज्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर ओन पेट्स. So she used to take them every day, and one day she met a person over there called कंदू राजा, जिसका अलग नाम सावरिया मौलनबी नाम से वो जाने जाते थे. और वहाँ रोज मिलते मिलते they fell in love, and eventually Rani Kali Koel became pregnant. But since they were not married, she had to conceal her pregnancy from her brother. So she decided कि अभी बाबा इनसे मुझे अपनी प्रेगनेंसी एंड उनकी वाइफ रानी हंतु से मुझे अपनी प्रेगनेंसी छुपानी पड़ेगी. So she decides to leave the palace of Baba Ind and decides to come back to the mango farms of Raja Bhoj, where she wishes to stay. Now the palace of Baba Ind is in heaven, the mango farms of Raja Bhoj are on earth. So she decides कि अब it's time कि अभी I cannot further conceal the pregnancy. मुझे सबको indication मिल जाएगा कि मैं pregnant हूँ, and I'll have to answer 1,000 questions. It will be an embarrassing situation for the entire family. So she leaves the Baba palaces. Baba Ind के palace छोड़ते हैं और mango farms में आ जाते हैं. And for a long time she stays there, and then 9 months and 9 days later she is ready to give birth. So during this particular situation, two deities arrive from the heavens to help her into it. Harjabai Hoyani and Bar Matano Dhani arrive her to help her out. हरजाबाई होयानी को आप दाई माँ के जैसा आप देख सकते हैं. शी इज somebody who is going to help her through the entire delivery and the birth of the entire process. बार मातानो धनी is an interesting character. उसका अर्थ क्या होता है? बार मातानो धनी. There are three different words. 12-headed intellectual individual. So basically he has 12 heads. Why? Because he has the knowledge of all the 12 directions with him. 12 और direction से, हर direction से जो भी knowledge available है सारा का सारा उनके पास है. So he has the answer to every possible question. He is an intellectual deity. तो वो भी यहाँ पे आते हैं. So now Rani Koel is ready to give birth. So she gives 4 births. 4 बार जन्म देती है. The first is to the trees, the flowers, the fruits, everything. Then she gives birth to the grains and pulses. Then to the elements of nature, air, fire, lightning. Then come the animals and insects, populating the entire earth with necessities that the human beings will require. And then finally, the celestial child Pithoro is born into this world. So this is how Bar Matano Dhani, or the enlightened one, 12-headed enlightened one, is portrayed. There are quite a few wrong interpretations of this particular character. Commonly इसे आजकल लोग, मतलब recent times से लोग रावण भी कहते हैं. It's very similar to that character, but इसे community रावण नहीं कहती है, तो हम भी नहीं कहने चाहिए कि रावण है. उसको बार माताना धनी ही कहते, तो बार माताना धनी ही कही जाए. उनके हाथ में हमेशा एक स्वॉर्ड होती है और एक स्नेक होता है. बेसिकली फाइटिंग बिटवीन द लैक ऑफ नॉलेज एंड, मतलब नॉलेज एंड इग्नोरेंस के बीच में का फाइट इज समथिंग दैट ही ऑलवेज इज स्ट्रगलिंग विद. दैट इज समथिंग अबाउट बार माता धनी. एंड देन राजा भोज, जिनकी हम बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कैरेक्टर है कि नहीं है वो बाद में बात करेंगे. राजा भोज को कैसे दिखाया जाता है पिथोरा पेंटिंग्स में? तो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एन एलिफेंट. वो राइडर्स वगैरह नहीं, उनको एलिफेंट अलग अलग कलर्स में होते हैं. समटाइम्स इज ब्लू, समटाइम्स इज ब्लैक, समटाइम्स इज रेड, डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट दैट इज परफॉर्मिंग द एंटायर आर्टिस्टिक प्रोसेस. So then what happened next? Let us move on. उनका जन्म हो गया, बाबो पिथोरो जन्म हो गया.
बट सिंस हिज मदर इज नॉट मैरिड, रानी कोयल की शादी नहीं हुई है, so what can she do? तो वो डिसाइड करती है कि she cannot keep the child and she cannot bring him up, उसको बड़ा नहीं कर सकती, तो she decides to abandon him. और कैसे अबैंडन करती है? तो बाबा पितरों के बच्चे जो होते हैं उनको कमल के पत्ते में लिपट देते हैं और उन्हें गंगा जमुना के पानी में बहा देते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि पूरी स्टोरी में हम गंगा जमुना सुनते हैं, बट जबकि राठवास और पूरे, अगर आप मध्य प्रदेश से भी शुरुआत करो जहाँ पे भील कम्युनिटी ज्यादातर रहती है, or even come back all the way to the Chhota Udepur region of where the Rathvas are there, the most predominant and the dominant river or the most revered river in this region is the Narmada. Despite that fact, we have the references of Ganga and Jamuna in this particular concept. So geography के लिए अगर हम इसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, जब तो गंगा जमुना आते तो हम then we have to figure out कि exactly किस region की बात करें. So this is something that is totally going off track. बट जस्ट टू टेल यू कि स्टोरी में गंगा जमुना आते हैं इंस्टेड ऑफ नर्मदा. तो गंगा जमुना के पानी में उन्हें बहा दिया जाता है एंड ही फ्लोट्स अवे एंड देन रानी कोयल डिसाइड्स कि नाउ इट इज टाइम टू लीव the mango farms of Raja Bhoj and go back to live with her brother in his palace. So she packs up everything that she has in that particular location and she goes back to the palace of Baba Inn. बच्चा तो अभी बाबो पिथोरो इज फ्लोटिंग अवे, तो उसको क्या उनका क्या होता है? तो कुछ डिस्टेंस बाद रानी काजल वहीं पे ही आसपास कुछ काम कर रही होती है. रानी काजल इज ऑल्सो दी एल्डर सिस्टर ऑफ रानी कोयल. तो वहां पे वो कुछ काम कर रही होती है और किसी बच्चे की आवाज आती है उनको पानी में से, एंड देन शी सीज दैट अ चाइल्ड कमल के पत्ते पे फ्लोट हो रहा है. तो शी डिसाइड्स टू रेस्क्यू हिम. वो पानी में स्विम करके जाती है और ये बच्चे को रेस्क्यू करके वापस शोर पे लेकर आती है, एंड शी डिसाइड्स कि इसका कोई नहीं है तो मैं इसको अडॉप्ट करके मैं इसको बड़ा करूंगी करके, राइट. तो वो भी तो फिर वो उसे बड़ा किस तरीके से करते, व्हाट डज शी फीड? अकॉर्डिंग टू स्टोरी, she feeds him the milk of avocado tree and the juices of flowers and plants. So this is what the initial food is, what Babo Pithoro has. This, a lot of influence of avocado tree and other stories associated with this particular culinary tradition, और जो फूड उनको जो खिलाया गया उसकी एक अलग 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 कहानियां हैं जो अगर टाइम बचे तो मैं उसमें ऐड ऑन करूंगा. And this is basically how Rani Kajal is portrayed in the Pithora paintings, a person who has a comb in his hand, something I'll tell in much more detail later down the line. तो रानी काजल ने अभी उन्हें अडॉप्ट कर दिया है, उनको बच्चा बड़ा भी कर रहे हैं धीरे धीरे. तो फिर एक दिन कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके वजह से रानी काजल कम्स टू द रियलाइजेशन कि बाबा पिथोर इज नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, वो एक डिवाइन चाइल्ड है, इज अ गॉड, इज अ डीटी. तो किस तरह क्या होता है? तो एक दिन पिथोरो को उन्होंने पालने में रख के वो झुला रही होती है, एंड बट शी हैज सम वर्क टू डू. उन्हें पानी रिवर से या तो कुएं से पानी लाना है घर के लिए. So she decides to put the child in the crib, leave him over there, and then she अपने घर के मटके वटके लेके सब पानी लेने चले जाती है. जब वो रिटर्न आती है तो देखती है कि पालने में से पिथोरो गायब हो चुके हैं, disappeared from the crib, and she becomes very worried. She looks around in the entire house, पूरे पैलेस में वो ढूंढती है, बट पिथोरो उन्हें कहीं नहीं मिलता, and she gets a lot of टेंशन में आ जाती है और वो बहुत ढूंढती है बट नहीं मिलता है. तो क्या करती है वो? तो उनके एक राठवा कम्युनिटी में एक बहुत ही ट्रेडिशनल एंड बहुत ही पुराना एक रिचुअल है जिसे पड़ी की रिचुअल कहा जाता है. तो शी परफॉर्म्स दिस पर्टिकुलर रिचुअल. नाउ व्हाट इज द एंटायर रिचुअल? बेसिकली पड़ी की बनाना मतलब एक पैकेट बनाना. पड़ी की का एक्चुअल बेस्ट रेफरेंस और द बेस्ट सिनोनिम इज और बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज टू मेक अ पैकेट. तो पैकेट क्या होता है? तो अपने रिवर ट्री के कुछ लीव्स, कहीं खाखरा कहीं महुड़ा, अलग अलग होते हैं, उसमें उड़द दाल के पल्सेस और एक गोल्ड या तो सिल्वर कॉइन रख के उस पैकेट को सील करके अपने घरों के अंदर थोड़े टाइम के लिए रखते हैं. उसके बाद वो पैकेट को अपने गांव के तो नियरेस्ट शामन के पास लेके जाते हैं, एंड देन देयर अनदर प्रोसेस व्हिच आई विल टेल यू लिटिल डाउन द लाइन. तो रानी काजल ऑल्सो परफॉर्म्स द पड़ी की रिचुअल. शी टेक्स द लीव्स ऑफ खाखरा ट्री, उसमें उड़द डाल के पल्सेस रखते हैं, एक गोल्ड कॉइन रखती है और थोड़े दिन तक वो अपने घर में ऐसे रखती है, so that she can invite the shamans to do the entire other work. So who does she invite? So she invites the best fortune tellers that are available to in the entire world. Titiya and Brahma Joshi को वो invite करते हैं. So they are also deities, but they can tell the future based on what is happening in the present.
तो वो दोनों आते हैं एंड दे परफॉर्म देयर ओन रिचुअल्स, परफॉर्म देयर ओन प्रैक्टिसेस और कस्टम्स और ट्रेडिशन जो भी वो प्रोसेस करते हैं, एंड देन दे कम टू द रियलाइजेशन एंड इन्फॉर्म रानी काजल के योर चाइल्ड इज डिवाइन एंड हैज चोजन हिज थ्रोन इन दिस वर्ल्ड। वो आपका बच्चा एक भगवान का बच्चा है और वो इस दीवार में जाके चुप गया है और उसने डिसाइड किया है कि ये उसकी राजगद्दी है। आप ये चीज एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट इट एंड एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ विल बी सॉल्व। एक्सेप्ट दैट योर चाइल्ड इज celestial child, he's a deity, he's a demigod, he's a god, whatever you want to call him, and then he'll return back to that crib, return back to our where we are, and all the problems, whatever problems you have in your life, all of them will be solved. So as soon as Rani Kajal accepts, yes, my child is a divine child, Babo Pithoro again returns back to the crib, and then every problem in her life is solved. So this is one of the major aspects of the story कि उन्होंने राजगद्दी अपनी दीवार में चुनी, इसलिए पूरा म्यूरल का इतना, इसलिए पूरा आर्ट फॉर्म जो हम पिथोरा के रिलेशन में देखते हैं, इट इज ऑन द वॉल। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हम क्यों दीवारों पे देखते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ आर्टिस्टिक और एस्थेटिक पर्सपेक्टिव, इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चरल बिलीफ, एक पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, पार्ट ऑफ देयर मिथोलॉजी। पिथोरो ने अपने बच्चे के जन्म, बच्चा जब पिथोरा बच्चा था तब उसने अपनी राजगद्दी एक दीवार पे चुन ली थी, इसलिए पूरा का पूरा आर्ट फॉर्म भी दीवारों पे देखा जाता है। सो now Rani Kajal came to the realization that her child is a divine child, so she decided that he has to receive the best education possible in the entire world. So of course she is the sister of Baba in the chief of the gods, the king of the gods, so she has the right to invite all celestial beings to educate Pithoro about the entire world. So all the celestial beings, all the important celestial beings अराइव टू द पैलेस ऑफ रानी काजल, और वो पिथोरो को जो बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन देते हैं, जितना भी जरूरत है सारा का सारा एजुकेशन इज व्हाट पिथोरो रिसीव्स। ओके, एंड देन आफ्टर हिज एजुकेशन इज गेटिंग ओवर एंड इज गेटिंग यंगर, बड़े हो रहे हैं, तो वन डे ही डिसाइड्स दैट ही इज नाउ रेडी टू डिमांड हिज किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। तो वो क्या करते हैं, ही गोज टू द कोर्ट ऑफ बाबा इंद, और वहां पे जाके रानी काजल और बाबा इंद के सामने अपना बर्थ राइट डिमांड करते हैं। ही टेल्स के टू बाबा इंद हिज अंकल कि मैं आपका ही नेफ्यू हूँ एंड आई हैव अ राइट टू डिमांड अ पार्ट ऑफ योर किंगडम एज फॉर माय ओन। तो बाबा इंद, based on this demand, he summons the entire assembly of gods and goddesses to discuss the demands made by Pithoro. He does not know Pithoro कौन है और वो क्यों ऐसा डिमांड कर रहे हैं, वो क्यों मुझे अपना अंकल कह रहे हैं, और रानी काजल का बेटा तो जरूर है बट उसका सगा बेटा नहीं है। शी रेस्क्यूड हिम फ्रॉम द रिवर, so does not mean that he becomes my nephew directly, so how can he demand? So therefore, to resolve this situation and to discuss the demands, Baba Pithoro announces, summons his entire assembly of gods. So Pithoro here again is called before the court of all, where all the gods and goddesses are present, and Baba calls Pithoro to discuss his entire demands again. So here, during this particular event, Pithoro reveals his original lineage before the court. He tells the entire court कि मेरे actually original mother जो है रानी कोयल है, she gave me birth, and my father is Savarya Molan. कंदू राजा मेरे फादर है। कंदू राजा इज ऑल्सो अ डीटी हु इज पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ बाबा इन। सो देयर एवरीबडी कम्स द रियलाइजेशन कि वो एक्चुअली उनके ओरिजिनल पेरेंट्स कौन है। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड दोज फैक्ट्स, he becomes a direct nephew, एक सगे nephew बन जाते बाबा इंद के, and then he tells him this is a reason why I am demanding a part of my kingdom. अंकल के पास से एक किंगडम मांगना मेरा हक है, and that is what I am doing right here. But Baba Ind refuses to accept this. He does not accept कि ये information correct है, and he thinks कि बाबा पिथोरो झूठ बोल रहे हैं, and he cannot believe कि उसकी बहन जो है whatever happened, she did not ever tell him that. So he refuses the demand for the kingdom made by Baba Pithoro, creating a very tense situation in the entire world. पूरा tense situation बन जाता है. It's a war-like situation. It is a very unsettling, unrealistic situation based on the denial by Baba Ind के वो accept भी नहीं करना चाहते. Pithoro उनका nephew है, and he also refused his demand for the kingdom. So then what happened? So all the gods and goddesses and all the people in the entire world are very worried कि अभी होगा क्या, what will happen?
So Rani Kajal decides that I do not want a struggle or a strife or a war or anything to happen between my son and my brother. So I have to take the lead of resolving this entire issue. So she talks to all the gods and goddesses and provides a solution that the best option for us to come out of this situation is to invite Lakhari and Jokari who can solve this problem. So Lakhari and Jokari are then invited by Rani Kajal to her palace, who are basically the scribes of God. जिस तरीके से हमारे स्टोरीज में चित्रगुप्त के बारे में हम जानते हो कि उनके पास पूरा एक इंसान का एक सोल का लेखा जोखा होता है, उसने पूरी अपनी लिविंग लाइफ में क्या क्या किया है उसका अकाउंट्स चित्रगुप्त रखते हैं। लखारी जोकारी थोड़ा यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में चलते हैं। दे आर द स्क्राइब्स ऑफ गॉड has been told by the Rathvas, but these two deities have the knowledge of what that soul or individual or that person is going to do in his life before even that person is born into this world. So they are future देख सकते हैं पूरा उनके अकाउंट्स के हिसाब से, उनके जो ये देख सकते हैं आप, जो आप इमेज देख रहे हैं, दिस इज हाउ दे आर पोर्ट्रेट सिटिंग ऑन चेयर एक मॉडर्न एलिमेंट जुड़ा हुआ है और उनके पास पूरा एक बुक है उनके सामने जिसमें वो पूरा अकाउंट्स लिख रहे हैं। दे नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड दे कीप ऑन राइटिंग इट ऑन इट। द विजन दैट दे गेट इज टू बी इज समथिंग दैट इज सेड कि वो भगवान से उनकी सारी विजन आती, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द स्क्राइब्स ऑफ गॉड एज वेल। तो रानी काजल इनवाइट्स दीज टू डीटीज और वो इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं एंड दे डिसाइड टू कम द पैलेस ऑफ रानी काजल। They arrive over here and they do a lot of different rituals and customs, which one of which involves drawing the various horses of all the deities, all the gods, all the goddesses that are there in the Rathva pantheon of the religion on the wall which was chosen by Baba Pithoro. Right, so they start drawing the horses of Baba Gane, Rani Kajal, Vadia Vania, Baba Ind, Baba Pithoro, Rani Pithori, Baba Hundol, Rani Makal, Rani Kanhari, Kaidi, Avo Kundbi. This is a spelling mistake over here. So Dhaneri, Jahu Valen, and Hantu Valen, and so on and so forth. There are several different deities over here. So they keep on drawing the horses of all the goddesses and all the gods, all the deities on the wall of the seat or the throne of Baba Pithoro. So then what happens next? As soon as the process of drawing the horses is coming to a close, there are several miracles observed in the entire world. बहुत सारे चमत्कार होते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग। जैसे ड्राइंग का प्रोसेस खत्म होने आ रहा है, miracles keep on happening. There is good rainfall, there is no drought anymore, everybody is happy, there is no sadness, the rivers are flowing, the oceans are flowing, every bird are singing, the animals are happy, the grass is green, there's no sadness, nothing, everything is positive, everything is happy everywhere, which gives the proof to the gods and goddesses that Pithoro is a divine being, he is a god, and then we should give him the recognition of being a god. And this is where all the goddesses receive the proof throughout this entire ritual done by Lakhari and Jokari के भगवान है और उनके पिथोरो एक्चुअली भगवान है और उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। So based on this information, and they collect all this information, and all the gods and goddesses and Rani Kajal arrive in the court of Baba Ind, जहाँ पे वो सारी information is told and put forth before Baba Ind through an intervention, and which eventually convinces Baba Ind that he is my nephew, he is also a god, he needs to have the recognition as he is earned, he deserves it. And then Baba Ind accepts all that information, everything goes back to normal, and he accepts the demand of Baba Pithoro, giving him one half of his kingdom rather than just one part of it, gives him half of his kingdom, and that is how Pithoro also becomes one of the chief deities or chief gods of the Rathvas. And this particular story or the ending of the story has a lot of different variations, of which the other story goes is Baba Ind, who was the chief of the gods, so he should have all the information beforehand. So in the other version, the story goes that Baba Ind already knew who Baba Pithoro is, वो किसके बच्चे हैं, वो अपने नेफ्यू है, वो किनका उनकी फादर कौन है, उनके मदर कौन है, वो सब जानते थे। एंड देन वन डे बाबा इंद ने अपनी कोर्ट की असेंबली बुलाई और वहाँ पे पिथोरो को भी इनवाइट किया गया, और बाबा इंद ने खुद ही हिमसेल्फ टोल्ड द एंटायर कोर्ट ऑफ ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस
that Pithoro is actually my nephew. He is the son of this particular sister of mine and this particular gentleman over here, and he is a celestial being. He is a god. So now I want to give him my entire kingdom and go and live life of an ascetic. मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं नेक्स्ट राजा पिथोरो को चुनता हूँ, और पिथोरो then becomes the chief of the gods or king of the gods of the Rathva gods and goddesses. तो हमें ऐसे कुछ 3-4 और वर्जन भी ये पूरी स्टोरी के एंडिंग में दिखते हैं. So this is another portrayal of how Baba Pithoro is shown in the Rathva art form. Then after becoming after getting his kingdom and बड़े हो गए तो रानी काजल decides कि अब उनकी शादी का समय आ गया है. So they keep on searching for the best ideal bride or the best option that they could select, and they select Rani Pithori for it, who by some sort of a for some reason their names are also matching in the entire story, Baba Pithoro and Rani Pithori. तो रानी पिथोरी का कैरेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी स्टोरी है, इसमें भी मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ. शी इज एक्चुअली द डॉटर ऑफ आबो कुणबी एंड मातारी, हु आर आबो कुणबी एंड मातारी. दे आर वेरी टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स बिकॉज they know the they have the entire knowledge of agriculture. पूरा एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कैसी करनी है, कौन से टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स उनको यूज करने चाहिए, क्या क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, कौन से सीजन में ग्रो करने चाहिए, हार्वेस्ट कैसे करे, पानी कितना डाले, सब चीज आबो कुणबी एंड माथारी जानते हैं. दे आर ऑल्सो सेलेस्टियल बीइंग्स ऑल्सो. तो आबो कुणबी और माथारी की बेटी रानी पिथोरी का सिलेक्शन होता है उनकी मैरिज के साथ. एंड देयर आर कपल ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मैरिज, जिसमें आबो कुणबी एंड माथारी डिसाइड कि ये इतनी बड़ी शादी हो रही है, आवर डॉटर इज गेटिंग मैरिड टू द बेस्ट पॉसिबल suitable groom. So we decide that we want to give humanity the gift of agriculture. While the other version tells us कि आबो कुणबी and माथारी decide कि now we will also come and live very next to our daughter. हम हमारी daughter के आसपास ही रहेंगे. So they leave the celestial world and come and live on earth with a very so that they can interact, and जब चाहे वो जाके अपनी बेटी को मिल सके तो वो अर्थ पे आके रहते हैं और ह्यूमैनिटी को धीरे धीरे पूरा एग्रीकल्चर का आर्ट एंड नॉलेज सिखाते हैं. कैसे टूल्स बनाना, कैसे फार्मिंग करनी, सारा नॉलेज धीरे धीरे आबो कुणबी एंड माथारी ह्यूमैनिटी को सिखाती है. तो दिस इज वन लार्जर स्टोरी जिसमें बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ. जो फोटो आप बॉटम में देख रहे हैं, दिस इज हाउ आबो कुणबी एंड माथारी आर ऑलवेज पोर्ट्रेड. दे आर ऑलवेज शोन फार्मिंग, और वो किस तरीके से दिखा रहे हैं आप भी देख सकते हैं. ऑन द टॉप इज हाउ रानी पिथोरी इज शोन. So we looked at the epic right now, कि पूरी उनकी स्टोरी है कि वो पैदा कैसे हुए, वो कौन थे, वो किस तरीके से दुनिया में आए, किस तरीके से वो भगवान बने, कैसे अपना किंगडम पाया, वो सब हमने देखा. पूरी माइथोलॉजिकल एपिसोड हमने देख ली. बट अब इसको एक एपिक कैसे एक रिचुअल में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा हम सीखते हैं. This is something that I've discussed with a couple of few shamans of the Rathva society, कि मैं जानना चाहता था कि रिचुअल का ओरिजिन क्या है, कि कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई. तो एक जितने भी शामन्स के साथ मुझे पॉसिबल हुआ है बातचीत करना, उनका एक जिस्ट बना के आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ द entire information that I received, which is there in front of you. There, according to the shamans, there might have been one great devotee of Baba Pithoro, who where he was living on earth was suffering through a major drought. जहाँ पे वो डिवोटी रह रहे थे, पानी और बारिश का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा ड्राउट था, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग. सो ही डिसाइड्स टू इन्वोक अ मानता ऑफ बाबो पिथोरो. मानता मतलब एक बेसिकली एक वाव लेना, एक शपथ लेना कि भाई बाबा पिथोरो मुझे इस डिफिकल्टी से छुटकारा दिलाओ, मैं आपके लिए सो एंड सो करूंगा. जैसे हम भी करते कि भाई हमारी एग्जाम आने वाली है, मुझे पास कर दो तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा. तो इस तरीके से ये डिवोटी भी मानता रखते हैं बाबा पिथोरो की कि मुझे ये डिफिकल्टी है, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, और मैं आपके ऑनर में पूरा सेलिब्रेशन रखूंगा, और आपको मेरे घर में इनवाइट करूंगा, और आपको हमेशा मेरे घर में एक स्थान दूंगा. तो ये पूरा एक डील जैसा बाबा पिथोरो के साथ वो डिवोटी करता था. जैसे ये डिवोटी ये सब चीजें कहता है बाबा पिथोरो को, थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है और पूरी धरती हरी भरी हो जाती है. सो रेन अराइव्स एंड एवरीथिंग बिकम्स ग्रीन, राइट.
So then devotee understand this is Baba Pithoro's blessings, and he decides to organize a big 7 day celebration through various rituals and ceremonies. बहुत सारे rituals, बहुत सारे ceremonies, पूजा पाठ, पूरा गांव मिलके celebrate करता है. And the 7 days festivity is concluded with the painting of the mural of Baba Pithoro, and thus inviting and giving a place to the deity inside their houses. So this is basically how the ritual of how the ritual got started, how art became part of the ritual, how the entire story of the entire Baba Pithoro comes to the gets converted into a ritual format, right? तो 7 डे सेलिब्रेशन का और पूरा थोड़ा और हम मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा आगे, just to give an understanding. This might be one of the origins of how the ritual might have started, right? So this is just to show you again some various traditional murals that are there. These are done in the houses of the various Rathva people. All these photos that you are seeing have not been documented by me, but I have seen these various murals as well. These were all shared with me by very good friends Naran Bhai Rathva and Vikesh Bhai Rathva. They are the curators of Vacha Museum in Adivasi Academy. So I can share with you guys. Let it be. So concentrate on the very multicolor conical shape boundary that is there. Can you guys see it? Okay. So these borders that are there, this borders is very important aspect of the entire painting. This is basically a border ही बोलो आप इसे best यही रहेगा. So what is this border trying to represent? It can be the entire boundary of the village, border of their country, border of their worldview, border of the cosmos. सारा पूरा कॉस्मोस उसके अंदर है, उनका पूरा जो भी उनका वर्ल्ड व्यू है, जो भी उनके थॉट्स है, जो भी उनका कल्चर, उनका बिलीव, सारा का सारा इस बॉर्डर के अंदर दिखेगा. बॉर्डर के एक पार्ट में एक छोटी सी गेट आप देख सकते हैं जिसमें लायन एंड टाइगर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड देयर इज समबडी विद अ ट्रम्पेट एट द सेंटर. So when you enter from that gate, you are born, and when you exit from that gate, you are basically dying. You are dead. So this person is announcing your arrival on birth, and is also announcing now that you are dead. So what are the main elements? Another main, of course, is this particular wavy line that you see. This particular wavy line concentrate on this. इस मोटिफ को आषाढ़ कहा जाता है ना. आषाढ़ के बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं. इट कैन ऑल्सो बी सेड कि दिस इज एन अम्ब्रेला फॉर द डीटीज अंडरनीथ. उसके नीचे जो भी डीटीज है, भगवान है, उनके लिए अम्ब्रेला है, छत है. दूसरा मतलब ये भी होता है कि आषाढ़ इज बेसिकली अ बाउंड्री और अ डिवीजन बिटवीन द सेलेस्टियल वर्ल्ड एंड द लिविंग वर्ल्ड. तो नीचे सब लोग रह रहे अर्थ पे है, और ऊपर जो भी डीटीज दिख रही है वो पूरे सेलेस्टियल वर्ल्ड में है, हेवन में है. So basically, it can also refer to boundary between the two worlds. Then of course, Raja Bhoj आप यहाँ पे देख सकते हैं. बार मातानो धनी portrait slightly differently again over here. Then you have the celestial, the cosmos के elements, sun, moon देख सकते हैं. There's farming happening over here. आबो कुंडी and मातारी अगर आपको देख सकते हैं. फिर okay, let me हाँ, ये आप एलिमेंट देख सकते हैं. नेक्स्ट टू दी ऑन द लेफ्ट ऑफ द एलिफेंट, दिस इज दी वाड़िया वाणिया, राइट. सो वाड़िया वाणिया क्या होता है कि आपके गांव का, आपके टाउन का, आपके सिटी का ग्रोसर, जहाँ पे आप सारे आपके रिक्वायरमेंट्स, ग्रोसरी के सामान, आपका राशन पानी आप खरीदते हैं. तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट किए ग्रोसर के शॉप में आपको क्या मिल रहा है, तो गन्स मिल रहा है. सो दे कम्युनिटी इज ट्राइंग टू टेल यू कि देयर सच अ लॉट ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड कि अभी ग्रोसर के पास भी आपको गन्स अवेलेबल हो जाएंगे. देन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज हैपनिंग, लाइक बटर मिल्क बन रहा है यहाँ पे. तो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज आपको देखने मिलेंगी यहाँ पे. ताड़ के ट्री से एक छोटा सा ही एलिमेंट, आई होप यू गाइस कैन सी इट. ताड़ का ट्री है, ताड़ के ट्री पे एक पर्सन इस ताड़ी का फ्रूट, ताड़ के फ्रूट निकाल रहे हैं जिससे वो ताड़ी बनाएंगे. ठीक है, कुछ रिचुअल यहाँ पे हो रही है जिसमें शामन्स है और म्यूजिशियंस जुड़े हुए हैं. दिस डांस फॉर्म यहाँ पे हो रहा है कुछ, राइट, अलग अलग चीजें. तो एवरी कैरेक्टर इज ट्राइंग टू टेल यू अ स्टोरी विच इज रिलेटेड टू बाबा पिथोरो. बाबा पिथोरो के रिलेशन में ही सारे हैं, बट यू ऑल्सो हैव वेरियस एलिमेंट्स रिलेटेड टू द डे टू डे लाइफ एज वेल. सो अगेन you can see बार मातानो धनी slightly different. The borders that we discussed are still the same. यहाँ पे गेट भी है,
Lion and tiger, the protectors of this gate are slightly different. यहाँ पे आभो कुंड भी है, but again मातारी has disappeared. Again an artistic representation है. The grocer has also slightly changed, but guns अभी भी है, in अभी भी guns दिखाई है. Elephant is there, the deities are there. Okay, moving on. This is again slightly different. So all these paintings are quite old, huh, guys? These are almost 50, 60, 70 years के paintings है ये सारे. जो बहुत पुराने हैं, but still the condition इसकी आप देख सकते हो कैसे सब होता है, वो मैं थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे ऐड ऑन करता जाऊंगा. तो जस्ट टू शोकेस के ये किस तरीके से होता है. अगेन सी द मॉडर्न एलिमेंट्स, इसमें वॉच ऐड हो गई है. ठीक है, यहाँ पे आपो कुंडी मातारी है. अगेन बार माता नदनी चेंज हो गए. गेट सब everything is mostly everything is common, quite common. Some more new elements keep on adding, keep on changing. Moving on. So this is the लेफ्ट साइडेड वॉल पे किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है. सो हाउ डू वी सी कि उसमें क्या दिखा रहे हैं. अगेन कम बैक व्हेन आई मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जस्ट ट्राई टू शो केस लिटिल के किस तरीके से ट्रेडिशनली ये बनते हैं. नागती भूतेन यहाँ पे आपको दिखे वापस. तो इस तरीके से होते हैं. मॉडर्न एलिमेंट्स उनके डे टू डे लाइफ में, उनको ट्रेन नहीं लगी तो ट्रेन आ गई है. ये वॉल, ये वही वॉल है जहाँ पे ये आपको दिख रही है. Then again a different, why is it taking long? Slightly different. So no two Pithora. The idea behind showing you all these images is के कोई भी दो पिथोरा सेम नहीं मिलेंगे आपको. Every पिथोरा is an individual dialogue है, individually drawn. There is no similarity between everything. The elements and the characters and the motives will remain constant, but आप किसी को दो को as it is identical कभी भी आप इसे नहीं ट्रेन देख पाएंगे इस तरीके से. That is what I'm trying to share when I'm showing this all these images. Then this is done on a canvas by a very eminent artist of the community, Mansingh Bhai. Mansingh Bhai Rathva has received several national awards and everything. तो ये कैनवस पे की गई है, तो स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली लेस अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स बट स्टिल शोकेसिंग अ लॉट. जैसे आपको यहाँ पे शामन की कोई रिचुअल दिख रही है. बाहर माता नौदानी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है. आबो कुंडी भी वैसे के वैसे. माता इज ऑल्सो देयर. यहाँ पे ताड़ी किस तरीके से वो बनाने की कोशिश कैसे बनाते हैं वो बहुत अच्छा दिखाया है. तो ऐसे ताड़ के फ्रूट में जाके वो ऐसे मटके रख देते हैं और वो सुबह सुबह जाके मतलब अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज वो मटके जहाँ पे जाके रख जाते हैं. And around 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, depending on how strong they want their alcohol to be, they bring it down. It is not alcohol actually. Healthy होता है सुबह सुबह पीना. नीरा बेसिकली, अगर आपको उसको नीरा नीरा कहे कि नीरो जैसे राठवा कहते हैं वो कहे तो. और ऐसे मटके रख कर आते हैं और वो जाके फिर अपने they'll bring it out and they'll have it communally. मतलब पूरा विलेज कंज्यूम करेगा. इट्स नॉट जस्ट कि एक अकेला फैमिली ही लेगा. So yeah, this is what I was wanting to show you. Then let us move ahead. रिचुअल किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा और सीखते हैं और विस्तार में उसके बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिचुअल कैसे शुरू हुई. वो थोड़ा देखा कि एक डिवोटी था, उसको बारिश पानी का और ड्राउट का प्रॉब्लम था. उसने बाबा पितोरो की मानता रखी और बाबा पितोरो ने प्रॉब्लम सॉल्व किया. और वो डिवोटी ने उसके लिए सेलिब्रेशन रखा और अल्टीमेटली आर्ट फॉर्म के माध्यम से उनको अपने घर में परमानेंट स्थान दिया. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे रिचुअल के प्रैक्टिस का. पर उसके पहले बाबा पिथोरा का रोल क्या है वो समझते हैं. तो बाबा पिथोरा इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर द राठवा पीपल. आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी दिक्कत हो, बाबा पिथोरा कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. So he basically takes away all the troubles related. It might be anything. It might be sickness. घर में बीमारी हो रही है, constantly people are falling sick. There might be shortage of money, farming not happening properly, children not happening, marriage नहीं हो रही है, गरीबी हो रही है, you're not earning enough money, there's quarrels in the family. कोई भी difficulty हो, बाबा पितरो can solve your problems. But before that क्या क्या किया जाता है.
So there are three main elements of this Rathva society involved in this particular ritual. The first is the घरधनी और the nuclear family owner और the जो भी फैमिली ओनर बेसिकली कि आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली को घरधनी कहा जाता है, ठीक है। तो होम ओनर के घर में प्रॉब्लम जब भी कुछ आएगा तो वो अगेन ही विल डू प्रैक्टिस दी पड़ी की रिचुअल। वो एक खाकरा ऐसा महुड़ा के पत्ते लेके उसमें उड़द दाल रख के कॉइन रखेगा और वो पड़ी की अपने घर में कुछ समय रखेगा और फिर वो जाएगा अपने गांव के शामन के पास। राठवा के शामन का नाम क्या होता है? तो या तो पड़वा या बुआ, ठीक है। तो वो बुआ के पास जाएगा, गांव के बुआ के पास जाएगा और वो पड़ी की उनके सामने रख देगा। ही विल नॉट टेल हिम हिज प्रॉब्लम्स, ही विल जस्ट पुट द पड़ी की इन फ्रंट ऑफ दी बुआ। बुआ क्या करेगा? पैकेट खोल के सारे इंग्रेडिएंट जमीन पे फ्लोर पे गिरा देगा। ही जस्ट अनपैक द पैकेट और जैसे भी जो चीज गिरेंगे बेस्ड ऑन दोज थिंग्स ही विल मेक प्रेडिक्शंस लाइक हाउ के डू यू हैव प्रॉब्लम ऑफ मनी, आपके घर में पैसे की शॉर्टेज हो रही है, आपकी खेती नहीं बराबर हो रही है, आपके घर में शादी बराबर से नहीं हो रही है, झगड़े चल रहे हैं। ही विल बेसिकली आस्क through a conversation कि this is what I am seeing, this is what the entire prediction that is coming in front of me, this is the picture that is coming in front of me, and these are these your problems? So that will depend on the Gardani. He will say कि yes, this is the problem that I am facing. तो वो बुआ फिर उन्हें सॉल्यूशंस देगा कि ओके इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। अब बुआ क्या क्या कर सकता है? तो अगर बीमारी चल रही है तो वो कुछ जड़ी बूटी की दवाई, उसके पास ट्रेडिशनल मेडिसिन का नॉलेज होता है तो वो दवाई बना के शायद दे सकता है। अगर पैसे का शॉर्टेज हो रहा है तो विल हेल्प देम टू गेट लोन फ्रॉम समबडी। अगर खेती बाड़ी का प्रॉब्लम है तो अगर उससे जितना हो सकता है वो करेगा, नहीं तो वो अपने शामन्स के नेटवर्क में जाके वो पूछेगा कि भाई इनके खेत में ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कोई है जिसको नॉलेज है तो वो हेल्प कर सकता है। तो दैट पर्सन विल कम एंड हेल्प आउट दिस पर्टिकुलर फैमिली। शादी नहीं हो रही है तो सिमिलरली ही विल सीक समबडी हु इज अप्रोप्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर गर्ल और बॉय। अगर घर में झगड़े हो रहे हैं तो ही विल ट्राई एंड एक्ट एज एन इंटरवीनर, इंटरवेंशन करेंगे और ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। दिस आर दी डिफरेंट रोल्स दैट दी बुआ विल प्ले टू सॉल्व द गर्दनी का जो भी प्रॉब्लम है, इस तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट इफ एवरीथिंग फेल्स, हर प्रॉब्लम हर सॉल्यूशन फेल होता है बुआ का, तो ही विल अल्टीमेटली टेल द गर्दनी कि अब आप बाबा पितरों की मानता रखो, उसके बाद ही सब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दैट वुड बी द फाइनल सॉल्यूशन। Before that, there will be a lot of different activities that will be done to solve. So when every solution provided by the Bua fails to solve the problem, he will then tell the Gardani to take the vow of मानता रखिए बाबा पितरों की, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब पितरों की मानता रखते गर्दनी एक्सेप्ट करता है कि हाँ मानता रख लेते, देन कम्स द एस्पेक्ट ऑफ लखार। दैट इज व्हेन द लखारा गेट्स इन्वॉल्व विद द एंटायर रिचुअल। Lakhara is basically in this particular concept the artist of the or the painter of the Pithoro mural. Lakhara शब्द का अर्थ क्या होता है राठवी में? A creative individual. He can be a poet, he can be a musician. वो अच्छा फ्लूट बजा सकता है, अच्छा ड्रम्स बजा सकता है। He can paint well, he can talk well. उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। जो भी क्रिएटिव इंडिविजुअल है उसे लखारा कहा जाता है। बट इन द पिथोरो रिचुअल लखारा जब शब्द हम यूज करते तो इट इज बेसिकली दी आर्टिस्ट ऑफ द म्यूरल। तो अब घर धनी का रोल क्या है? तो घर धनी के रोल क्या है? तो ही विल बेस्ड ऑन हिज ट्रबल, जो भी उसके दिक्कत है, जो भी उसको प्रॉब्लम्स है, वो पड़ीकी का रिचुअल करेगा और बुआ के पास जाएगा। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिचुअल। प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई घर धनी जब करेगा, उसके बाद वो पड़ीकी रिचुअल करेगा और वो बुआ के पास जाएगा। अब बुआ ने क्या किया? बुआ इन दिस राठवा कम्युनिटी इज कंसिडर्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो है ही वो गर्दनी लखारा बाबा पिथोरो, मतलब लिविंग एंड सेलेस्टियल वर्ल्ड के बीच में का वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। बट उसके अलावा उसके पास बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज है, तो जो वो अप्लाई करेगा। इट्स अ हेरिडेटरी ट्रेडिशन, हेरिडेटरी ओरली ट्रांसमिट किया जाता है। टीचर्स ही आप स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, बट फादर टू सन ज्यादातर हम देखते हैं हेरिडेटरी प्रोफेशन। तो जहाँ पे एंसेस्ट्रल नॉलेज इज पास डाउन थ्रू प्रैक्टिस, ओरली भी सिखाया जाता है। रिचुअल कैसे करते हैं उसका नॉलेज, दी प्रेयर्स एंड दी इनकेंटेशंस वो सारी सिखाई जाती है। डिफरेंट नॉलेज दी जाती है, वेटनरी नॉलेज, मेडिसिनल नॉलेज,
all the different types of it, communication की skills उन्हें सिखाई जाती है, so because they have to be very elucidated, मतलब properly बात करना, गुस्सा ना करना, emotion को check में रखना, बहुत सारी चीजें, and then of course how to make predictions वो सिखाया जाता है, जो पढ़ी लिखा रिचुअल होता है उसको कैसे करते हैं, हाउ इज द ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट दैट, वो सारे सिखाई जाती है। तो ही विल सजेस्ट अ लॉट ऑफ रेमेडीज, नॉट जस्ट बिकॉज ही घर में कोई प्रॉब्लम है, वो डे टू डे लाइफ में भी कोई किसी को कोई भी उसकी हेल्प चाहिए तो बुआ के पास जाके वो सजेशंस ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट काम वो बुआ प्ले करते हैं सोसाइटी में। So when everything fails, he will tell the Gardani or the person in the trouble कि मानता रख लीजिए बुआ की, बाबा पितरों की, sorry. Then the element of Lakhara comes in, or the role of Lakhara comes in. So this is again an hereditary practice है, and Gardani को जब मानता रख लेते हैं, and then there's a lot of different activities going between the fact के मानता रख ली, मानता रखने के बाद से लेके जब तक म्यूरल बनने वाला है, आर्ट फॉर्म बनने वाला, उसके बीच में बहुत बड़ा समय होता है, जो उसका हम और डिस्कशन करेंगे। बट जब वो रेडी होते हैं कि हाँ अब म्यूरल हमें बनाना है, आर्ट बनाना है, तब जाके लखारा एंटर होता है पूरे रिचुअल में, और घरधनी को पर्सनली जाके लखारा को इनवाइट करना पड़ता है। दे हैव टू सिलेक्ट लखारा दैट दे वांट टू want to select to conduct the entire art practice in the house. So the Gardhani and the shaman will then decide firstly select कि हमको किस लखारा को चुनना है, और वो लखारा चुन लेने के बाद they will have to personally go to the लखारा, give him the invitation and invite him to the ritual. इस पूरे प्रोसेस को नोत्रु कहा जाता है, इनविटेशन, बेसिकली इट मींस इनविटेशन। नोत्रु के समय लखारा को घरधनी को कुछ गिफ्ट देने होते हैं, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी मनी, क्लोथ्स, फुटवेयर, एनीथिंग, जो भी घरधनी को देना लगता है उचित है तो वो उसको आके देना होता है। बट गिविंग गिफ्ट गिविंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर टू बी डन ड्यूरिंग द नोत्रु पीरियड। So before we move on to this entire thing, let us go back little. तो घरधनी ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उसने पढ़ी की रिचुअल कर ली, और फिर बुआ के पास गया, बुआ ने अलग अलग रेमेडीज बताई, बट एवरीथिंग फेल्ड। व्हेन एवरीथिंग फेल्ड ही टोल्ड दी गर्दनी कि आप मानता रख लो। अब मानता रखने के बाद भी बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं, इट डज नॉट मीन कि अभी मानता रख ली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो बुआ और गर्दनी और बुआ कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन में रहते हैं। बुआ कीप्स ऑन एंश्योरिंग कि वो एक क्लोज वॉच रखे गर्दनी के प्रॉब्लम के ऊपर एंड प्रोवाइड डिफरेंट सॉल्यूशंस। अगर शादी नहीं हो रही है तो इट कीप ऑन लुकिंग फॉर अ ग्रूम एंड ब्राइड। अलग अलग एक्टिव, अगर घर में झगड़ा है, घर से क्वारल इन द हाउस बेस्ड ऑन, शायद जमीन की वजह से हो सकता है, घर की वजह से हो सकता है, तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो people themselves basically are trying to solve the problems because उन्होंने मानता रखी है, does not mean कि भगवान ही सब कुछ कर देगा, वो खुद कोशिश किए जाते हैं। when the point comes कि हाँ now we feel कि problem is almost to its completion, problem अभी खत्म हो जाएगा, is this solved, then is the point when they decide कि now we have to do the 7 day celebration। बाबा पितरों की रिचुअल करेंगे, खत्म पूरी हम रिचुअल करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। उसके बीच में बहुत समय होता है, इट कैन टेक एज मच एज 6 months हो सकता है, साल हो सकते हैं, 2 से 3 4 5 साल भी पीरियड हो सकता है, जहाँ जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। वो प्रॉब्लम की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना समय वो फैमिली लेगा। बट देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स एंड अदर पैरामीटर्स ऑल्सो इन इट, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बट let us look at one important ritual that is done during the 7 day celebration। जब हम बात करें तो 7 days का जो celebration होता है, it is the point when the problem is almost solved and now the family has decided कि they will perform all the rituals। तो हर दिन अलग एक भगवान की रिचुअल एंड सेरेमनी होती है, बिगिनिंग फ्रॉम बाबा गणे। बाबा गणे की पूजा सबसे पहले दिन होती है, और अलग अलग दिन अलग अलग पूजाएं होती है। बाबा इंद्र की पूजा होती है, बाबा पिथोरो की पूजा होती है, उनकी बहनों की होती है, अलग अलग डीटीज की होती है, तो अलग अलग दिन होती है। लखारा चौथे या पांचवें दिन आता है घरधनी के लोकेशन पे, घरधनी जहाँ रहता है उनके घर में चौथे या पांचवें दिन लखारा अराइव करता है, जिस दिन
पांगु विधि होती है। पांगु विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है पूरे 7 डेज की सेलिब्रेशन में, और पांगु विधि उसकी प्रेजेंस में होती है। बट उसके पांगु विधि के पहले एक रिचुअल होती है जो है टू कलेक्ट दी वाइट क्ले फ्रॉम दी रिवर बैंक्स। वाइट क्ले इज सपोज टू बी कलेक्टेड बाय दी unmarried girls of the family or the village from the river banks, which is then applied on the wall। जिस दीवार पे म्यूरल बनने वाला है, आर्ट फॉर्म बनने वाला है, उस पे लिपण करने के लिए सफेद क्ले को लेकर आना का काम जो होता है अनमैरिड गर्ल्स करती है। वो एक दिन पहले, नाइट बिफोर द अराइवल और द सपोजिंग डे ऑफ द अराइवल ऑफ द लखारा, this white clay is collected, and then after his arrival in his presence वो clay की लिपण होती है। अनमैरिड गर्ल्स will only do it, वो लिपण करते हैं और फिर उसके सामने पहली पूजा शुरू होती है जिसमें लखारा एंड घरदानी मिलके पूजा करते हैं एंड वॉल को चूज करते हैं कि हाँ ये वॉल पे हम करने वाले हैं। और सबसे पहला म्यूरल का काम यहाँ से शुरू होता है। 9 लाल टीके होते हैं जो वो करते हैं। आई शो दैट कि वो किस तरीके से करते हैं। और सबसे पहला जो मोटिव बनता है म्यूरल पे, दैट इज द हॉर्स ऑफ बाबा गणेश और गणेश, which is the first motive that is done। and during the process, जैसे ये ड्राइंग का बाबा गणेश का घोड़ा बनाने का प्रोसेस शुरू होता है, उस समय बुआ अपने इनकांटेशंस और प्रेयर्स गाने शुरू हो जाते। तो पूजा के दौरान तीनों एलिमेंट साथ में होते हैं। लखारा भी वहां पे होता है, गर्दनी भी जुड़ा है और बुआ भी जुड़ा हुआ है। तो 9 टीकों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई होप यू गाइस कैन सी, ये इस तरीके से कुछ होता है। देयर आर यूजुअली 9, sometimes more sometimes less, but 9 is the figure that they usually follow। There might be in here as well, yeah, here। So this is how they choose the wall। लिपन और जो पांगु विधि का व्हाइट क्ले लगा देने के बाद सबसे पहले ये करते हैं और फिर सबसे पहले बाबा गणेश का घोड़ा बनाया जाता है। बाबा गणेश का घोड़ा कहाँ गया? Okay, I need to identify him later। Let us do that little bit later। Okay, so this is what the Pango Vidhi is all about। So this is one step where all 3 elements of the society, or 3 characters or the 3 elements of the society, come together in one particular location for the first time। और वहां से अपने काम वो साथ में रह के करते हैं। लखारा विल कम विथ हिज एंटायर टीम। इट इज नॉट समबडी के एक ही आदमी पूरा कर सकता है, ऐसा नहीं होता। देयर इज अनदर रीजन फॉर इट एज वेल, टू टीच द नेक्स्ट जनरेशन। लखारा में चूज स्टूडेंट्स एज वेल, या तो वो अपने बच्चों को ही सिखाना चाहेगा। So the number can depend on the popularity of the Lakhara। If he is very popular, very well renowned, we might have at least 10, 15, assuming 10, 15 people coming, or junior artists coming with him। or it can be 3, 4, but eventually 3 से 5 लोग उसके साथ आते ही हैं to help him out to do all the drawings and all the work, because it is not a one man's job। and other reason is because he has to finish it within 3 days। so fourth fifth, अगर fourth day आता है तो by the end of the 7th day all the elements of the mural has to all the entire mural has to be completed। so he will require a team to help him out creating the drawing करने के लिए हेल्प करे, चाहिए होगी कलर फॉर्म करने के लिए चाहिए होगी, कलर को लगाने में चाहिए होगी हेल्प। तो he will require of course a lot of help। so traditionally, what are the different mediums through which the mural can be done is, पुराने जमाने में बैम्बू के ब्रश बनाए जाते थे। बैम्बू के थिन स्टिक्स को लेके उसको नाइफ से अलग अलग उसको दे टू मेक इंसिशंस इनटू इट, और उसको ब्रश फॉर्म में बना के उसमें करे के जाते थे। नेचुरल पिगमेंट कलर्स वर यूज, और उसका सोल्यूशन, कलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, अभी भी वैसे ही बनाते हैं। अगर नेचुरल पिगमेंट्स अगर यूज करते हैं तो अभी भी सॉल्यूशन का मिक्सचर इज वेरी सिमिलर लाइक दैट। पिगमेंट्स को लेके महुड़ा का अल्कोहल यूज करके उसमें काउ मिल्क मिक्स कर, तो इस तरीके से सॉल्यूशन बनता है। देन इट बिकम्स अ कलर इज रेडी टू बी यूज्ड एज अ पेंट फॉर्म। then on any single traditionally done Pithoro mural, not something on canvas पे भी होता है, but depending, but a traditional mural, Pithoro mural will have at least 165 motifs, 165 stories, 165 characters in a single mural।
which will are telling you different aspects of the different lives, different elements of the lives and the different events of the lives of Baba Pithoro. कुछ और कैरेक्टर्स की हम डिस्कशन भी करेंगे depending if we have time, but 165 stories to right in front of you through one particular art form, एक ही म्यूरल के अंदर. So then, how do we study, or how do we look at indigenous art forms? So there are various perspectives through which you can look at it. Aesthetic perspective से देख सकते हैं आप, artistic perspective से देख सकते हैं, एक visual art form की तरह देख सकते हैं. Why is it a mural, and the elements and technical aspects देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बनाया जाता है, उसमें क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, what are the different ingredients used. That is one perspective. The other perspective is what is the cultural aspect of the mural in the ritual, what is the cultural aspect of the ritual of the art form in the society, and so on. There are several different parameters and perspectives through which you can study any indigenous art form in the country. Pithoro murals and modern canvases, अगर दोनों भी अगर आप study करना चाहो, so they are incomplete according to me if you do not understand the community's perspective. अगर पहला एक्सरसाइज हमने इसीलिए ही किया था कि आपको फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम इफ यू आर लुकिंग एट एन इंडिजिनस आर्ट फॉर्म, लेट्स से टुडे वी सॉ पिथोरो, but if you are looking at any indigenous art form, it is only giving you 50% of the information. Any art form, any indigenous art form or any other art form, if you do not ask questions exactly what is being portrayed here in front of you, you are only getting 50% of the information. आप बाकी की साइड की स्टोरी तो समझ ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग ये सेलिब्रेशन हो रहा है, ये मार्केट हो रहा है, ये वॉर चल रही है, रिचुअल चल रहा है. यू कैन जस्ट अज्यूम कि दिस इज समथिंग हैपनिंग एंड यू माइट से आई हैव जस्ट 20-30 minutes or 1 hour to spend in this front of this art form, and still if you do not have enough curiosity or questions in your mind coming up, or if the questions are coming and you're still not asking the question, the other side of the perspective, other side of the story is totally lost. So that you do not, and that is one of the reasons why you do not understand कि basically क्या चल रहा है. Without asking questions, you will never learn. So there's an entire mythology, entire ritual, a socio-cultural aspect or significance of the entire thing is there right in front of you, showcased through this entire art form that you are seeing, which allows a clear understanding of how to view an indigenous art form, which eventually tells you what is the worldview of the Rathva people. वो कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, what are the different activities, right from their day-to-day activities to their gods, to their how they learned agriculture, who is their mother, who is their chief god, what are the different gods in the society, what are the activities of the grocer, what are the different activities. I'll show you a little bit more so that you understand. 165 के 65 characters में नहीं दिखा पाऊंगा, बट दिस इज जस्ट टू शो यू कि पूरा का अगर राठवा सोसाइटी आपको समझनी है, बस पिथोरो म्यूरल के सामने खड़े रहिए और जितना हो सके उतना क्वेश्चंस पूछिए. राठवा सोसाइटी विल बिकम वेरी इजी टू लर्न. So then what is the, we were saying, I was constantly using the concept art and mural and so on and so forth, but this particular concept is, or labels mural art, ये सब concepts राठवा लोग नहीं यूज करते, राठवा सोसाइटी does not use it. It is a very common word for them, कला. हमारी कला છે એ, under that term kala, everything comes under it. It can be poetry, it can be music, it can be dance, it can be art, it can be everything. Every creative thing can come under one particular umbrella term. It is their skill. Yeah. So Pithoro के बारे में वो क्या कहते हैं, that it is a form of writing, a medium to express their faith, culture and history. So they are basically conveying their entire faith, entire culture, entire history right in front of you through the medium of art.